that type. Now, as far as mathematics is concerned, again the CLAT has stopped asking questions from all sort of different topics, and they are focusing more on caselets of data interpretation. So if I talk about data interpretation, there are four main things which you need to be comfortable with it. Next, number one, you need to understand basics of numbers. So addition, subtraction, multiplication, division, basic calculations. Then there are three important concepts which are covered in most of these questions of data interpretation: concepts of percentages, concepts of averages, and concepts of ratio. Right? So if you are clear with these three concepts, then most of the questions of mathematics, which will be more or less three sets of data, will be solved. So although they have not explicitly said that they are not going to ask, but we do not expect questions from topics like time, speed, and distance, or geometry, mensuration, or time and work, or both set streets. Although they have not explicitly mentioned that they are not going to ask, but there is a high chance that questions of those types may not come if I look at the past 2 year trends. तो आपका एग्जाम है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? Any topic that you would like to read again, like I said, understand, ठीक है? which you have given, सोच लेना. Because if the mocks are following the latest pattern of the past 2 years, then those are exactly the type of questions. You just need to analyze what mistakes you are commonly making. Okay, so more or less that's what is required, because now mathematics is only a 15 marks. Prime Minister Modi ने हैदराबाद में एक भक्ति सेंट का बहुत बड़ा स्टैच्यू GK current affairs is the only thing where even they give a passage, they do expect you to have some sort of understanding of current affairs, some sort of external knowledge to be able to answer the questions. So for that, again, any updated mock will give you a fair idea of the current topics which have happened in the past 1 year. So the focus being Statue of Equality, yes. लेकिन वो किसका था? My word, I want to know वो personality कौन? आदि शंकराचार्य नहीं, रामानुजाचार्य नहीं, okay? रामानुजाचार्य, ठीक है? Okay. Remember, in Hyderabad, ठीक है? Very good. Understand the data. Very good. Very good. How to understand the data is the problem. चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे छोटे छोटे. हाँ 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 अभी मिल नहीं रहा. See, it's a matter of understanding how to exactly put it into words. What I can suggest is if you have got any such set of questions which you feel which monarch celebrated you have got access to the platinum jubilee. So send me a screenshot of, there's a chat facility on the app where you can directly send messages. Send me screenshots of the written questions on that. Maybe I can work it on भले हमारी टीम नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है? एलिजाबेथ so that we can continue to interpret the question. तो दादीमा 1953 So that's it pretty much, because हुए, most of the other ठीक है? sections which मेरे include को कभी-कभी legal, लगता है reading, प्रिंस चार्ल्स चल बचेंगे is more लेकिन about just दादी getting and understanding the passage. ठीक है? Right? तो प्रिंस चार्ल्स का Mathematics, ऐसा you होगा, worry about आज 15 आया marks and लेकिन mostly data वुमेन आया, interpretation. ठीक So है? keep sending the doubts. Maybe I can दादी अभी तक जगह है, putting it on the ठीक है? Twitter and showing. आते हैं, हंसते हैं, ठीक है? As far as legal is concerned, Which country recently became okay, a you're sending new the app, right? republic? Sure, let me check it. कौन सा country recently Anything else? monarchy से एक नया रिपब्लिक बना? Very good. बारबेडोस. बारबेडोस गाइस, मैंने बताया था कि बारबेडोस पे किंग रूल, बारबेडोस में they were a constitutional monarchy, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल को हटा के क्या कर दिया है अब? रिपब्लिक. सॉरी, मोनार्की को हटा के क्या कर दिया है? रिपब्लिक. और क्या था उनके प्रेसिडेंट का नाम? प्रेसिडेंट का नाम क्या था? चलो बताओ, काफी डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, इसका इंपॉर्टेंस समझाया था. लिख लो, सांग्रा मेसन. सांग्रा, यस, सांग्रा मेसन. ओके, बारबेडोस वाला टॉपिक अच्छा है, ठीक है? दूसरी एग्जाम में एक एक मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है? कॉर्ड समिट, ठीक है, हम कॉर्ड के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है? वी विल डू इट आफ्टर टुडेज पीपीटी. आज जिसको भी कोई भी टॉपिक पढ़ना है आप बता सकते हो, ठीक है? मैं आपको पढ़ा दूंगा. आज कॉर्ड के बारे में पढ़ लेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है?
ओके गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आप सबने पेपर पढ़ा होगा। You should know that right now two important topics are there in India. One is Rajya Sabha elections and the other is, और कौन सा है, किसका इलेक्शन आ रहा है अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है? One is the elections of Rajya Sabha and the other is president. Yes, very good. President की इलेक्शन आपको पता होना चाहिए। किसने अनाउंस किया है? Election Commission of India. They have recently announced the round for presidential election. So today we are going to cover this topics in very much detail, very much detail. ठीक है? Because जो new students है, जिनको नेक्स्ट ईयर देना है, आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राज्यसभा का इलेक्शन 2 साल में एक बार होता है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, और प्रेसिडेंट और राज्यसभा का काफी इंपॉर्टेंस होता है। अंडरस्टूड? ये दोनों कैटेगरी के इलेक्शंस कौन करवाता है? विच बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ MPs फॉर राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट? ये मैं लास्ट टाइम करवा चुका था। द आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी के इलेक्शंस करवाती है। सबसे पहले हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लोकसभा के इलेक्शंस करवाते हैं। देन पार्लियामेंट में विधानसभा के करवाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के। और देन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 148 नहीं, अनमोल गलती हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324। अनमोल, आर्टिकल 148 is for Controller Auditor General, CAG. Okay, चलो, तो we will discuss some very important points about Rajya Sabha, which is also called as second house, second chamber. ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। जो भी नए स्टूडेंट्स है, अभी काफी नए स्टूडेंट्स है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वी आर डूइंग दिस इन ऑनलाइन फॉर्मेट। पहले आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनोगे, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं लिखोगे, आप सिर्फ मेरी बात सुनो, समझो, और बाद में आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आराम से। डोंट डू दिस एक्टिविटी जहां पे आप मेरी बात भी सुन रहे हो और लिख रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके ओके गाइस। कोई भी पार्लियामेंट होता है तो 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिकैमरल, मतलब उस पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही हाउस होता है, और कुछ होता है बाइकैमरल, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, यहाँ पे 2 हाउस है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा is called as lower house, राज्यसभा is called as upper house। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। आप वोट देने जाते हो या जाओगे, मैं वोट देने जाता हूं, तो लोकसभा पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंडिया में कब आया? When was this system introduced of having 2 houses? It was introduced by Britishers in 1918 under Montagu Chelmsford reforms। ठीक है, तब जाके बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना। एक है लोअर हाउस और एक है अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है भाई, इतना पता चल गया अभी तक। व्हाट इज बाइकैमरल, कहां से आया, पार्लियामेंट में क्या होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं अपर हाउस को? बिकॉज यहाँ पे स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो राज्यसभा है वहां पे स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। बट लोअर हाउस में क्या है, पीपल इन जनरल आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। हम वोट देने जाते हैं तो किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, हमारा। और अपर हाउस में क्या होता है, द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड, ओके। इंडिया का सबसे पहला राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट कब बना, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3rd अप्रैल, और फर्स्ट सेशन कब हुआ, 13 मई को, ठीक है। हेलो, ये क्या दिखाता है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ राज्यसभा, बिकॉज वी हैव अ फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी का मतलब है टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक है यूनियन गवर्नमेंट और एक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री में ऐसे दो गवर्नमेंट्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल कंट्री। फॉर एन एग्जांपल यूएसए, यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। पता चल रहा है आपको यहां तक, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल पॉलिटी, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, राज्यसभा क्या दिखाता है, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको कहा दैट द पीपल ओपिनियंस आर शोन इन लोकसभा, लेकिन स्टेट्स के कंसर्न और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट वो कैसे होता है, थ्रू राज्यसभा। डिटेल में बात होगी। शेड्यूल 4 है, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, मैंने क्या पढ़ाया आपको, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर, वेरी गुड, देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें जो शेड्यूल 4 है उसमें हर एक स्टेट्स को कितने राज्यसभा की सीट्स मिली है उसका एक लिस्ट है, पता चला। फॉर एन एग्जांपल गुजरात विल गेट 10 सीट्स, महाराष्ट्र विल गेट 14 सीट्स। ये लिस्ट, ये सब कहां पे मेंशन किया गया है, शेड्यूल 4 में। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, पता है आपको, कि सरकार गिर गई तो लोकसभा क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। बट राज्यसभा इज द कंटिन्यूअस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा 1952 से चालू है तो आज तक चालू है। व्हाई, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट इज अ परमानेंट हाउस, ओके। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, 250%, 250 पीपल इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसमें से 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिप्रेजेंटेड होते हैं और 12 पीपल आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। द आंसर इज नो, ओनली एमिनेंट पीपल फ्रॉम साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज, दे आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। और सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड है। इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है, इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है, देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। अपनी बुक में लिख लो मेहरबानी करके, ठीक है। देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज, उसमें से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। कौन सी है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ओके। क्लियर गाइस, लिख लो, इतना लिख लो। ये तो चल रहा है। और एनी डाउट्स इन दिस, एनी क्वेश्चन इन दिस, बट मेरे को स्पीड टेस्ट नहीं बता रहा आपको कि कहां पे विच 3, अच्छा, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ठीक है भाई, अभी तो ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आपको पता चल रहा है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आर यू एबल टू ग्रास्प इट। और टोटल कितने स्टेट्स है इंडिया में, 28 states and 8 union territories.
वैभव क्या कह रहा है, आसियान मीटिंग होस्ट। वैभव, मीटिंग को होस्ट तो हो जाने दो। एक बार इंडिया होस्ट कर लेता है आसियान की मीटिंग, फिर हम उसके बारे में डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। एक बार मीटिंग हेल्ड तो हो जाने दो, फिर पढ़ेंगे हम उसके बारे में। आसियान के बारे में मैं पुराने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ भाई। आप सबको आएगा ना आसियान क्या है, ठीक है। 10 मेंबर ग्रुप, ठीक है। इंडो आसियान पढ़ चुके हैं हम, इंडो ईस्ट एशिया भी पढ़ चुके हैं हम, ईस्ट एशिया समिट। आई होप यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। 2 हफ्ते बाद आपको ये सब आना चाहिए जो इस साल एग्जाम देने वाले, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ाया था मैंने 1967, याद आया? वेरी गुड। आप सबके मॉक टेस्ट कैसे जा रहे हैं? The students who are going to appear this year। हाँ बस चलो, ये अच्छा है। आपको पता है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन से हाउस के मेंबर है, लोकसभा के है या राज्यसभा? No, this is राज्यसभा। और वो कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको आइडिया है? मिस्टर एस जयशंकर, he represents which state? It is GK class at 12, not legal. Legal is on Saturdays. He represents Gujarat. Yeah. He is an MP from Gujarat in Rajya Sabha, ठीक है। अभी 10 दिन पहले आके गए यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, चले हुआ आगे, लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट ईयर के लिए ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं पता कि बाकी एग्जाम्स के पेपर बन गए हैं या नहीं बने हैं, बट राज्यसभा इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखो, राज्यसभा का जो एमपी होता है उसका टर्म 6 साल का होता है, ठीक है। लोकसभा का एमपी का टर्म कितना होता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? 5 साल। लेकिन राज्यसभा के एमपी का कितना होता है? 6 साल। और राज्यसभा के इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं, ठीक है। चलो अभी इसके रिगार्डिंग आगे पढ़ना है। ओके गाइस, ये हो गया। अभी मैं कुछ कह रहा हूं राज्यसभा के बारे में, वो ध्यान से सुन लेना। देखो, राज्यसभा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। The main purpose of Rajya Sabha is also to check the powers of Lok Sabha, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को मस्ती आ गई प्राइम मिनिस्टर को, जैसे इंदिरा गांधी को एक बार आ गई थी, तो अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो वो राज्यसभा में भी पास करवाना पड़ता है बाय 2/3 मेजॉरिटी। अगर राज्यसभा पास नहीं करता है तो आप इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते हो, पता चला आपको? ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा हैज द एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव मतलब ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है, टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस। जैसे IAS IPS एक ऑल इंडिया सर्विस है, तो राज्यसभा चाहे तो अंडर आर्टिकल 312 एक ऑल इंडिया सर्विस भी क्रिएट कर सकती है, पता चला? राज्यसभा is responsible for the passing of 3 emergencies। 352 अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तब भी राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा। अगर आपको प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना है, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, तब भी आपको करना पड़ेगा राज्यसभा से पास। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर वो भी पास करवानी है तो आपको राज्यसभा से वो बिल
पास करवाना पड़ेगा। Am I clear? Okay. And remember one thing that a prime minister can be from any of the house. प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है? But he is answerable to Lok Sabha only. Please write this down. That the Prime Minister and the Council of Ministers is answerable to Lok Sabha only. ठीक है? They are not answerable to Rajya Sabha. Even any minister or Prime Minister is from Rajya Sabha. ठीक है? They are only answerable to Lok Sabha. पता चला? दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप सबको पता चलेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा के एमपी कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? लोकसभा में तो हम जाके वोट करते हैं, बट हाउ एमपी इज सिलेक्टेड फॉर राज्यसभा? जैसे मिस्टर एस जयशंकर का इलेक्शन कैसे हुआ फ्रॉम गुजरात? बताओ। The answer is State Legislative Assembly, जो गुजरात की विधानसभा है और उसके जो एमएलए है, इलेक्टेड एमएलए, the word I am using here is elected MLA, जिसको गुजरात की पब्लिक ने इलेक्ट किया है, they will vote and they will decide that who will represent Gujarat in Rajya Sabha. Am I clear? The MLA of every state, they decide, the elected MLA of every state, they decide that इसको भेजना है राज्यसभा में, ठीक है? Am I clear? And the voting is done by proportional representation. ठीक है? वोटिंग कैसे किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी हम उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पढ़ेंगे। अभी राज्यसभा के बारे में आपको कोई कुछ भी पूछेगा, आपको हमेशा आंसर आए, ठीक है? वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन टोटल डिटेल, कुछ नहीं छोड़ा मैं, ठीक है? चलो, अभी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी कहां पे आए थे 2 दिन पहले? गुजरात आए थे, अहमदाबाद भी आए थे, ठीक है? गुजरात ट्रिप पे आए थे, ठीक है? फर्स्ट ही वेंट टू नवसारी, वहां पे उन्होंने क्या किया? एक हॉस्पिटल का उन्होंने ही डेडिकेटेड टू पीपल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, वो जो हॉस्पिटल है ना, that is created by one of the most eminent person, M. Nayak, अनिल नायक। आपने अनिल नायक का नाम सुना है? वो LIT के चेयरमैन थे, ठीक है? तो उन्होंने फाउंडेशन बनाया था, तो वो जो होता है, जो हॉस्पिटल उन्होंने ओपन की थी, उसका ओपनिंग सेरेमनी में मिस्टर मोदी आए थे। नाउ अंडरस्टैंड, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। व्हाई? Because it is much more type of a private event, ठीक है? इतना बड़ा इंसान है तो आए, ठीक है? बट इन अहमदाबाद, भोपाल में मिस्टर मोदी उन्होंने क्या किया? ओपनिंग किया है इन स्पेस का, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नाउ गाइस, दिस ओपनिंग और दिस एजेंसी वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस, वो किसके अंडर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। दिस एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट प्रोग्राम। समझ रहे हो? ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है, तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने के ज्यादा चांसेस। आपको पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर यहाँ पे मिस्टर मोदी का कोई दोस्त है, उन्होंने बड़ी हॉस्पिटल खोली है, उसके फंक्शन में आएंगे तो कोई पेपर वाला उसके बारे में नहीं लिखेगा। बट दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो भोपाल में हुआ, अहमदाबाद में,
दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोग अपने आप भी पढ़ो तो आप अननेसेसरी यूज में अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस एजेंसी। ये इन स्पेस है क्या? ओके, बेसिकली से बिफोर फ्यू इयर्स, 3-4 साल पहले तक, the space exploration, the space based activities in India were only open to government agencies. It was a public affair, ठीक है? Private industry were not allowed to participate in space based program. इसरो के साथ काम करना है, कुछ रॉकेट बनाना है, तो प्राइवेट कंपनीज were not allowed. ठीक है? So what government thought, कि we should also try to bring private players in this field, that is space exploration. तो उनकी एक्सपर्टीज, उनका टेक्नोलॉजिकल पावर, मैन पावर, स्किल पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से we can take our space program even to further heights. पता चला what is the objective of the government, that rather than only ISRO doing all the things with related to space, let us allow Tata, Reliance or whatever, whichever private entity wants to do it, ठीक है, to participate in this projects. So गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? They will facilitate and regulate private space agencies and ISRO. ठीक है, इसरो को भी रेगुलेट करेगा और प्राइवेट स्पेस एजेंसी को भी रेगुलेट करेगा। ठीक है, it will help private space agencies and parties to allow to use ISRO equipments, ISRO infrastructure to carry out their own research and space exploration. Okay, लिख लो। Any doubts in this, guys? तो पूछ लो। बाकी very easy, ठीक है? What is the objective of this? पता चल रहा है एवरीबॉडी? एक बात बताओ, रिसेंटली पंडित शिव कुमार शर्मा पास कर गए। He used to play, or he was famous for playing which instrument? अरे वेरी गुड अंकल, वेरी गुड। पंडित शिव कुमार शर्मा गुजर गए रिसेंटली। ठीक है, अभी जस्टिन बीबर को कौन सा पैरालिसिस हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये सब अपने इंडिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसके ऊपर आएगा। द आंसर इज संतूर। ठीक है, द आंसर इज संतूर।
परम गंगा जो इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है, परम गंगा, वो कौन से इंस्टीट्यूट में लोकेटेड है? आईआईटी बैंगलोर गलत है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इतना डिटेल में पढ़ाया था लेकिन अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं। आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, वहां पे परम गंगा नाम का जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसे रखा गया है, ठीक है। और इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, परम सिद्धि 5.26 पेटाफ्लॉप्स, उसका स्पीड क्या है? 5.26 पेटाफ्लॉप्स। ये मैं अभी आपको जो पीपीटी मैंने पढ़ाई है उसमें से ही क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूं, ठीक है। और वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी न्यूज में था। देखो, फुगाकू, फुगाकू और फ्रंटियर दोनों के बीच में थोड़ा कंपटीशन जैसा है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप चाहो तो लिख सकते हो फुकागू, ठीक है। फुकागू, ठीक है। गाइस ये याद रखना, ये सारे देखो गाइस, अंडर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, मतलब आप लोग जो मुझे कुछ नए बता रहे हो, वो क्या है? दे आर कंसिडर दैट दे विल बी द फास्टेस्ट। समझ रहे हो क्वेश्चन का? अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं आज कैसा कह दूं कि मैं एक सुपर कंप्यूटर बनाऊंगा जो सबसे तेज होगा, लेकिन बनने तो दो। समझ रहे हो मेरी बात? ओके ओके गाइस, चलो लेट्स गो एड नाउ, ठीक है। ओके, एक और सुपर कंप्यूटर का नाम लिख लो, परम पोरुल। प्लीज राइट डाउन परम पोरुल। It is a supercomputer in India situated at NIT, National Institute of Technology, Tiruchirappalli, Tiruchirappalli. परम पोरुल। हाँ, ये परम प्रवेग मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। ये परम पोरुल है, रिसेंटली आया है इसके लिए, ठीक है, इन मई। परम प्रवेग इज इन आईआईटी बैंगलोर, यस, ठीक है। परम प्रवेग, देखो समझ रहे हो ना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। सीडैक बनाता है, इट इज अ प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। रिमेंबर गाइस, which agency is responsible? CDAC, Computer Center for Development of Advanced Computing। याद आ रहा है आप सबको? ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो। परम प्रवेग, हाँ, IISc बैंगलोर। My bad. Yes, guys. Param Praveg is in IISc Bangalore, Indian Institute of Science Bangalore, ठीक है। IIT नहीं, IISc, ठीक है। ओके। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके?
ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वापस से न्यूज में था बिकॉज अ मीटियोर इट क्रैश्ड द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। इसके लिए ये वापस से न्यूज में है और इट इज इंपॉर्टेंट इवन फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो गाइस, ऑब्जर्वेटरी एंड टेलीस्कोप हम अर्थ पे रखते हैं, लेकिन अर्थ के अलावा इवन वी हैव टेलीस्कोप इन स्पेस। आप सबने हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम तो सुना होगा, ठीक है। सुना है कि नहीं सुना? वेरी गुड। हबल स्पेस टेलीस्कोप हमने 1990 में भेजा था इन स्पेस, ठीक है। एंड एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स वो घूमता है, इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। पता चला हबल टेलीस्कोप सिंस 1990 we sent in space and it rotates around the earth at the height of 500 kilometers, ठीक है। So now in this 30 years with new technologies, with new requirements, NASA, the premium agency, they decided that we will send the most powerful telescope in space. उसका नाम पहले क्या रखा था? नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन फिर इसका नाम बदल दिया 2002 में, और क्या नाम रखा है? नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके नाम पे रखा है, जेम्स वेब, ठीक है। दैट वाज सेंट along with partnership with two agencies, NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency, ठीक है। नासा ने जो टेलीस्कोप बनाया, नासा और कनाडा ने मिलकर क्या बनाया है? टेलीस्कोप। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोवाइडेड द रॉकेट व्हिच टुक द टेलीस्कोप इनटू स्पेस। पता चला यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या प्रोवाइड किया है? द रॉकेट। रॉकेट का नाम लिख लो, क्या था रॉकेट का नाम जो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाता है? कम ऑन ओल्ड स्टूडेंट्स, आपको आना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट? एरियन 5। एरियन 5 वो फ्रेंच एजेंसी का रॉकेट है। जैसे हमारा पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, वैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट कौन सा है? एरियन 5, and that is launched from French Guiana. It is located in South America. यहाँ तक सब कुछ क्लियर? पता चल रहा है सबको? ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बताया, हबल टेलीस्कोप तो क्या करता है? घूमता रहता है एट द हाइट ऑफ 500 किलोमीटर, 570 किलोमीटर। बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वो ऑर्बिट नहीं करेगा। उससे हमने अर्थ और सन के बीच में एक स्टेशनरी पॉइंट है, लाग्रांज पॉइंट। इट इज अ स्टेशनरी पॉइंट। समझ रहे हो डिफरेंस? हबल टेलीस्कोप घूमता रहेगा, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नहीं घूमेगा, ठीक है। हम उसको एक ही जगह पे रखेंगे। कौन सी जगह पे? लाग्रांज पॉइंट L2। क्यों लाग्रांज पॉइंट पे रखेंगे? बिकॉज दैट विल ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ एंड मून, which will help Webb telescope to stay cool, which is very important for infrared telescope. तो आप पूछोगे सर इंफ्रारेड क्यों? बिकॉज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विल वर्क इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। कौन से स्पेक्ट्रम में काम करेगा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। एंड आफ्टर और जेम्स वेब टेलीस्कोप विल बी रिप्लेसिंग हबल स्पेस टेलीस्कोप। एम आई क्लियर? मुझे पूछते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप। इसका जो एंटीना का साइज है वो 6.5 मीटर है। कितना? 6.5 मीटर, ठीक है। लिख लो फटाफट। और पुराने स्टूडेंट्स, आप सबको निसार के बारे में याद है? निसार
नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। बहुत अच्छे से हमने सब कुछ पढ़ा है, तो याद रखना और रिवाइज करना, ठीक है। Have you guys read about Captain Abhilasha Barak recently? क्या आपने कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में पढ़ा है कुछ रिसेंटली? अगर आप लोग एग्जाम्स के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए था। न्यू स्टूडेंट्स, आप में से किसी ने पढ़ा है अभिलाषा बराक के बारे में? Okay, yes. Why it is important to know about her? Because she is the first combat helicopter pilot in Indian Army. Indian Army में she is the first combat aviator pilot. समझ रहे हो? इंडियन आर्मी में देखो, इंडियन एयरफोर्स में तो सिंस 1993 women are there, even in Indian Navy. But recently, Indian Army में जो उनके पायलट्स होते हैं, और वो भी कॉम्बैट पायलट्स हैं, उसमें सबसे पहली बार कौन इंक्लूड हुआ है? कैप्टन अभिलाषा बराक, ठीक है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट न्यूज, तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन बारे में जब आए तब थोड़ा पेशेंट रहना, क्योंकि काफी डिटेल में है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप प्रेसिडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सबने लिख लिया? चले आगे, ठीक है। ओके ओके, ये कंपैरिजन है जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में और हबल टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। देखो, हबल टेलीस्कोप कहां पे है? 570 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप कितना ज्यादा दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है। प्राइमरी मिरर मैंने आपको बताया ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप का कितना है? 6.5, हबल का 2.4, ठीक है। और एक ही सेगमेंट है मिरर का, जेम्स वेब टेलीस्कोप में कितना है? 18 है, ठीक है। वेवलेंथ, जो मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या करेगा? इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड। हबल टेलीस्कोप कितना करता है? इंफ्रारेड के साथ अल्ट्रावायलेट भी, ठीक है। देख लो, पढ़ लो।
देखो वैभव, आप इस साल एग्जाम देने वाले हो कि नेक्स्ट टाइम देने वाले हो? कौन सा ईयर आप टारगेट कर रहे हो? हाँ, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, लेकिन उससे भी पहले आप क्या पढ़ोगे? पुराने क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको पता चलेगा, आपको आइडिया आएगा कि मुझे कौन सी टाइप्स के न्यूज पढ़ने चाहिए थ्रू आउट द ईयर एंड विच टू अवॉइड। समझ गए? हेलो। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है? गिव योरसेल्फ सम रीजनेबल टाइम एंड यू विल गेट इट, ठीक है? ओके गाइस, नाउ लेट्स गो ऑन। फैक्चुअल न्यूज है, मलेशिया अबॉलिशेस मैंडेटरी डेथ पेनल्टी। ठीक है, मलेशिया ने क्या किया है? मैंडेटरी वहां पे वो घचाघची कर देते थे, ठीक है, कि इसको उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, तो ये बंद कर दिया है। मलेशिया डेथ पेनल्टी नहीं देगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स कंसीडर करेगा, ठीक है? इसके पहले मई में किसने किया था? जाम्बिया। जाम्बिया कहां पे आया भाई? जाम्बिया कंट्री कहां पे लोकेटेड है? अभी गूगल करने मत बैठ जा, इट्स इन अफ्रीका, ठीक है? तो अफ्रीका वाज द वन जिन्होंने ये एबॉलिश किया। तो ऐसी जब घटनाएं होती है तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले खुश हो जाते हैं, क्या आप लोग थोड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वाले क्या कहते हैं कि जब किसी इंसान को आप डेथ पेनल्टी देते हो, then you are taking away his rights of right to life and right to live free from torture, cruel, inhuman and degrading form of punishment, ठीक है? और ये जो दोनों राइट है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव फ्री फ्रॉम टॉर्चर, क्रूएल्टी, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, दे आर recognized as your rights under United Declaration of Human Rights adopted by the United Nations in 1948. Am I clear? Any doubt in this? आपको तो ऐसा लग रहा होगा ये सर मलेशिया के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर ये यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के ऊपर आई गेस लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा, ठीक है? ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लॉज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? कौन सी कंट्री ने ऐसा कुछ बैन किया, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? सो ध्यान लगा के पढ़ो। पुराने स्टूडेंट्स को तो आदत है, नए स्टूडेंट्स और ज्यादा फोकस, ठीक है? एक साल रहेगा ऐसा इनके लिए, लिख लो। हाँ, वंश, तमिलनाडु टॉप फूड सेफ्टी इंडेक्स, यस। देखो, लेकिन फूड सेफ्टी इंडेक्स पढ़ना है, किसने टॉप किया वो पढ़ो। कितने पैरामीटर्स होते हैं, कोई भी इंडेक्स होता है, सपोज आपका रिपोर्ट कार्ड है, तो उसमें कितने सब्जेक्ट्स पे आपको ग्रेड दिए गए, वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। इन द सेम वे कोई भी इंडेक्स होता है, तो उसके कितने पैरामीटर्स थे, कितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, ये पढ़ना भी जरूरी होता है। किसने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए,
कौन सबसे कम मार्क्स लाया, ठीक है। आज हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यस वंश, इट इज अ इम्पोर्टेंट न्यूज, पढ़ना चाहिए, ठीक है, इट्स अ गुड न्यूज। ओके गाइस, चले आगे। चलो चलो चलो, yes. हाँ देखो, इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझते, मजा आना चाहिए। देखो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो तो मजा आना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई में हर एक चीज का मतलब समझो, थोड़ा थोड़ा, डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा। देखो, इंडिया इज अ रिपब्लिक, रिपब्लिक है हम लोग, वी आर नॉट अ मोनार्की, ठीक है। सबसे पहले रिपब्लिक का मतलब ही क्या है और मोनार्की का मतलब क्या है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द जो स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, वो एक इलेक्टेड पर्सन है, रेदर देन अ किंग और अ क्वीन हु इनहेरिट और हु सक्सीड्स। पता चला मेरे कहने का मतलब? जैसे रामनाथ कोविंद के बच्चे, वो ऑटोमेटिकली नहीं बन जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन इंग्लैंड में देखो, अभी क्वीन चली जाएगी तो अपना चार्ल्स भाई बैठ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? वेरी गुड। रिपब्लिक होने का मतलब क्या है? दैट द हेड ऑफ अ स्टेट इज अ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस मतलब आप बन सकते हो कल उठ के प्रेसिडेंट, कोई और बन सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। पीपल कैन इलेक्ट हु विल हेड द स्टेट, हु विल बी द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। बट हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन जो है, जैसे कि प्रेसिडेंट, हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, हम उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? जो हमारे इलेक्टेड एमएलए हैं, इलेक्टेड एमपीस है, और राज्यसभा के जो एमपी है, इलेक्टेड, द वर्ड आई एम यूजिंग हियर इज इलेक्टेड, वो आके वोटिंग करते हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। पता चला? दैट वी इलेक्ट अवर प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली। और वो प्रेसिडेंट को कैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ अवर इलेक्टेड एमएलए। हमारे जो इलेक्टेड एमएलए है गुजरात के, राजस्थान, तमिलनाडु एंड ऑल द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, उनके इलेक्टेड एमएलए, नो नॉमिनेटेड एमएलए, ध्यान से सुनना, नॉमिनेटेड एमएलए और नॉमिनेटेड एमपी, जो हमने अभी राज्यसभा के 12 एमपी के बारे में पढ़ा, जिनको नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। एम आई क्रिस्टल क्लियर? ये इतना बड़ा मेजर पॉइंट आपको पता चल रहा है? ओनली द इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, दे कैन वोट इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, ठीक है। चलो, तो पहले क्या होता था कि कोई भी मुंह उठा के, एनीवन कैन, anyone from anywhere can consider themselves as a nominee for presidential election, ठीक है। लेकिन एक ही कंडीशन है, that there should be at least 50 proposers and 50 seconders जो आपका नाम नॉमिनेट करे कि नहीं भाई, इस इंसान को हम सपोर्ट करते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 50 प्रपोजर होने चाहिए, 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, ठीक है। ये क्यों करना पड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? बिकॉज पहले क्या है, ऐसे कोई भी मुंह उठा के चला आता था कि मेरे को भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रहना है, पता चला? तो ये ना हो और ओनली सीरियस कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1974 में ये लॉ लाए हैं कि 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, ठीक है। और आप एक ही इंसान को नॉमिनेट कर सकते हो एज अ प्रपोजर और एज अ सेकेंडर, ठीक है। यू कैन नॉट नॉमिनेट मोर देन वन पर्सन। एम आई क्लियर गाइस? यहां तक की कहानी पता चल रही है आपको? कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है, ठीक है, लिख लो।
वी हैव 4 पीपीटीज ऑन दिस टॉपिक। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लो। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? that there has to be a vice president। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? there has to be the president of India। ठीक है। और आर्टिकल 53 क्या कहता है? that the executive power, एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंडर है? प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि इंडिया में who is the supreme commander of the defense forces, who is the supreme commander of the defense forces, तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लीज राइट डाउन that president of India is the supreme commander of the Indian forces। आर्टिकल 53 में लिखा है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट के पीछे आपने देखा होगा आर्मी के यूनिफॉर्म में एक इंसान होगा, और नेवी के यूनिफॉर्म में होगा, और एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में होगा। ठीक है। देखा है कि नहीं देखा है? पता चल रहा है? Oh, good। ओके, चले आगे भाइयों बहनों। जैसा कि मैंने आपको बताया that MPs from parliament and MLA from every state, they vote in presidential election। Now the important thing here is that एक vote is equal to one value। ये नहीं होता है पार्लियामेंट में। Every vote of every MP and MLA has different weight। मैंने क्या बोला? weight। ठीक है। The vote casted by an MP of Rajya Sabha and Lok Sabha is fixed value। राज्य सभा के MLA और MP उनका वेट फिक्स है। कितना है? 708। लेकिन जो MLA है हर एक स्टेट के, उनका वेट चेंज होता रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यूपी के जो MLA हैं, उत्तर प्रदेश के MLA हैं, उनके वोट का हाईएस्ट वैल्यू है कितना? 208। और अरुणाचल प्रदेश के जो MLA हैं, उनका वैल्यू कितना है? 8। समझ रहे हो आपको? वोट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज इन द केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एवरी MP ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा उनका वेट सेम है, लेकिन MLAs ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज has different weight। पता चला? Am I clear? It is very simple। Okay, लिख लो। लिख लो। चले आगे एवरीबॉडी।
ओके लेट्स गो। ओके, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एमएलए और एमपी के वोट में क्या होता है, दोनों में से किसी के ज्यादा वोट आ गए वो जीत जाता है, पता है ना आपको। देयर इज नो केस फॉर मेजोरिटी, देयर इज नो नीड फॉर मेजोरिटी। दो कैंडिडेट्स है और उसमें से जिसके भी ज्यादा वोट्स आए वो जीत जाता है। बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको प्रेफरेंस देने होते हैं। यू आर एन एमपी, तो आप क्या करोगे, सपोज देयर आर 5 कैंडिडेट्स, तो आप उसमें 5 कैंडिडेट्स को अपना रैंकिंग दोगे कि फर्स्ट मैं इसको प्रेसिडेंट देखना चाहता हूं, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये सारे वोट सबके हैं जब ऑल द कैंडिडेट्स आर, और के बाद कितना, मिनिमम 50 ऑफ द टोटल वोट एंड प्लस 1, तब जाके आप बनते हो इंडिया। ठीक है, द वोटर्स ऑफ द electors write the name candidates on the ballot paper in the order of preference. Okay? The presidents are held in means of secret transferable vote. Voting secret ballot. पता चला, it is done in secrecy. Am I clear, guys? सेम तरह से, बट वहां पे सीक्रेट बैलेट नहीं होता। राज्यसभा में भी मैंने आपको बोला था वहां पे सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। ठीक है, एम आई क्लियर? लिख लो। राज्यसभा सीक्रेट बैलेट, ठीक है, ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ट्राई गो अहेड। एवरीबॉडी नेक्स्ट। को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या, president is removed from the position by using article 61 और कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा है that what grounds he can be removed, ground constitution। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में what do you mean by violation नहीं लिखा है। ठीक है गाइस, मेरा आवाज आ रहा है कि डिस्टर्बेंस हुआ लगता है। ठीक है, लेट मी स्पीक अगेन। ओके ओके, जस्ट अभी हुआ, ठीक से आ रहा था। हेलो हेलो, माइक चेक, अब आ रहा है ठीक से?
Okay, mic check. Okay, that is printing then. Okay, Article 61 में president के impeachment के बाद लिखा गया है. The president can be removed if he violates the constitution. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा है. इसका क्वेश्चन नहीं दिया है that what do you mean by violation of. और impeachment के प्रोसेस के बारे में क्या लिखा है? Start from any house. Upper house भी स्टार्ट कर सकती है, लोअर हाउस कर सकती है, ठीक है. नोटिस देनी पड़ती है प्रेसिडेंट को एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस 1/4. सपोज आया प्रेसिडेंट. तो राज्यसभा के कितने मेंबर्स? तब जाके आप प्रेसिडेंट को नोटिस भेज सकते हो. बाद में पूरा रिजोल्यूशन दे इट नीड्स टू बी 2/3 ऑफ द it needs to be हर बार एक ही जगह ऐसा हो रहा है. तो ओके हाँ, कह रहा था that it needs to pass majority. दोनों हाउस में प्रेसिडेंट का रिजल्ट 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है. आफ्टर पासिंग दिस रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी एक कमिटी को भेजा जाता है, सिलेक्ट कमिटी को, और वो इन्वेस्टिगेट करती है. एंड इफ दे कंसिडर इट देन ही इज कंसिडर एज रिमूव्ड. जब सिलेक्ट कमिटी भी देती है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाके प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है. एम आई क्लियर? अभी पता चला एवरीबॉडी? ओके, लिख लो. नाउ यू हैव कवर्ड द प्रेसिडेंट टॉपिक इन टोटल डिटेल, और एटलीस्ट आई वुड से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर आपको कोई भी बनाएगा, आप आराम से लिख लो. ओके गाइस, चले आगे. ओके गाइस, नेक्स्ट जो भी है देखो. देयर इज दिस पर्सन हु इज कॉल्ड रामकृष्ण मुकागिली, because he is an Indian person and he has been recognized globally by United Nations Global Compact. Any Indian
or Indian origin person, if they are getting recognition, तो हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कृष्ण, उनके बारे में, he is the first Indian to be recognized as a sustainable development goal for water saving by United Nations Global Compact, ठीक है? पता चला आपको जो सस्टेनेबल गोल्स है, वाटर सेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेविंग वाटर एंड टू मेक श्योर दैट वाटर इज अवेलेबल टू ऑल द कम्युनिटीज, ठीक है? फॉर दैट रीजन उनके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। Mukaveli is the founder and the managing director of Maitri Aquatech. Is a Make in India company, ठीक है? And he is providing water security with nature-based solution to India and 20 cities. Okay? चल रहा है आपको? हम पर्सन की क्या अचीवमेंट्स है उसके बारे में बताया। He is recognized by Global Compact, ठीक है? For his contribution to sustainable development goals for water saving. Okay, लिख लो, पता चल रहा है? Are you getting it? चलो भाइयों बहनों, चले आगे। ओके, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया, मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर इंडिया में और इंडिया कुछ भी गिनीज है तो आपको उसके बारे में बताना जरूरी है। और ये रिकॉर्ड तो क्या था, ठीक है? क्या था? नितिन गडकरी साहब रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मंत्री है, तो क्या है दैट जो नेशनल ऑफ इंडिया है, दे हैव कंस्ट्रक्टेड द लॉन्गेस्ट bitumen 70 meters in 105 hours 33 minutes and highway 50 between Amravati and Akola. इसके पहले ये रिकॉर्ड किसका था? 25 किलोमीटर का था, तो लोहा का था कतार, ठीक है? कितना वक्त लगा था? 10। हमने कितना बनाया? 75 किलोमीटर, वो भी 105 आवर्स और मिनट्स में, ठीक है? उसके साथ में एक और रिकॉर्ड के बारे में भी यहाँ पे लिखा है, its name in the Guinness Book of World Records by weighing the maximum number of फटाफट लिख लो और याद रखो। नए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कुछ भी रिकॉर्ड टाइप, तो उसको आपको पढ़ना। एम आई क्लियर?
ओके, हो गया, चले आगे। I don't startup and 2022. Okay. अगर मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करते हैं, एनी टाइप ऑफ, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये स्टार्टअप है, एक रखा है, एक किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। And Prime Minister Modi stated that first biotech is a reflection of the country's expansion of the इस इवेंट, ये इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया है? बायोटेक्नोलॉजी एंड, ठीक है। बायोटेक इज अ डिपार्टमेंट अंडर दैट किया है, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। और कोई भी इवेंट होती है तो उसकी थीम होती है, पता होना चाहिए। थीम क्या थी? बायोटेक स्टार्टअप देखो डिटेल में इंफॉर्मेशन because it is not, these are very standard of questions, इतनी इंफॉर्मेशन हमारा काम हो जाना है। लिख लो। Really sorry. I always conduct my lecture from the same place. मतलब हर बार ठीक चलता है, आज कुछ थोड़ा Okay guys,
देखो, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स थ्रू ईयर आपको काफी सारा इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इंडेक्सेस, सबसे पहले एक इंडेक्स है रिलीज कौन करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द पैरामीटर्स। टोटल कितने पैरामीटर्स थे? 10, 20, 30, उसमें नाम ने टॉप किया है और कौन सी कंट्री लोवेस्ट से ज्यादा किसने टॉप किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पब्लिश किया है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। 80 कंट्रीज का रैंकिंग और उसमें इंडिया का रैंक आया है। कौन सा आया है इंडिया का रैंक? लास्ट 180। ठीक है, कि इनको कुछ आता नहीं है, ये लोग फालतू का बना। ऐसा बोला बिकॉज इंडिया के नेबरिंग नेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश कोई भी हमसे आगे। पाकिस्तान एट 126, बांग्लादेश इज एट 177। अभी नीचे दिस रैंक indicator 40 performance indicators, mental health, ecosystem, they have performance indicators 40। देख लो, ओके गाइस, हो गया। ओके ओके, इंडिया का कितना स्कोर आया है ऑन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज 18.9। which are the three important categories, primary categories: ecosystem vitality and environmental health।
guys, don't forget this time आपको अफगानिस्तान काफी did to the okay बहुत for people who are going to appear next Sunday मैं उनकी बात कर रहा हूँ ठीक है वेरी मैथ देख के जाना मैं आपको बहुत मैथ्स पढ़ाए बिकॉज ठीक है ओके ये लिख लिए ओके that is thank you so much and also students who are next time देखो सीधा thing and some other students आप क्वेश्चन पेपर भेजना है on my email ID ठीक है मुझे पता ठीक है is your job ठीक है you guys have to do that ठीक है and best luck ठीक है well okay any questions guys